on behalf of IS Delhi Institute, myself Adesh Moe, faculty and director of IS Delhi Institute, I welcome all of you to this wonderful session, Toppers Talk by Dr. Aditya Sharma, All India Rank 70. So, I think there is no need of any introduction to Aditya as far as his rank is concerned and his achievement is concerned. But still, it's a formality. Just I will take hardly few seconds to complete his brief introduction. Yeah, please come, Dr. Aditya. So now Dr. Aditya is with us. So at the age of 24, yes, at the age of 24, and in a very first attempt, he cracked the prestigious and one of the toughest examination, that is UPSC civil service examination. And one more thing I would like to tell you, in the same year, he has also appeared to the interview of CDS, Combined Defense Service, and CAPF, Himachal Civil Services. Okay, so what happened with that result or something, he might be get selected over there. Okay, that's now redundant anyway. So completing MBBS, okay, and immediately completing MBBS and completing internship, appearing for the UPC examination, appearing for the CAPF examination, appearing for the Combined Defense examination, appearing for the Himachal Service Public Commission, and getting success all in all these examinations simultaneously. So what is the secret? What is the secret over there? So he is going to share with us. So formally I invite Gajanan sir, again director and faculty of IS Delhi Institute, to welcome Aditya sir. So now I will not take much time, and I am hand holding this session to Dr. Aditya so that he will discuss with you. First, he will discuss his strategy regarding how he prepared and how he went with the session, his strategy and preparation and all that with respect to prelims, mains, interview. With respect to optional, he will be focusing little more on medical science. His optional being medical science, and then he will take queries from you. So first he will take offline queries, and then online student, whatever queries you are getting in between or at the end of the session, whatever you can keep typing queries over there. Dr. Aditya will look into all these queries at the end of the session and after addressing all offline queries. Okay, thank you. एवरीवन, जैसे सर ने थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी, बट मैंने क्या किया था कि जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मेरी इंटर्नशिप के एंड में था। जैसे अगर मेरी इंटर्नशिप खत्म होनी थी जून में, तो मैंने 1 मंथ की एक्सटेंशन ले ली थी क्योंकि प्री था 5 जून को, और फिर प्री दिया और उसके बाद मैंने जुलाई एंड में अपनी इंटर्नशिप खत्म करी। तो मतलब कहने को फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी थर्ड ईयर में, है ना, क्योंकि थर्ड ईयर में आई हैड मेड अप माई माइंड कि यार मैंने सिविल सर्विसेज करना है, तो कि मेडिकल से मेरे को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। तो पीछे 2.5 साल मैंने तैयारी करी थी। तो अब इसके लिए ऐसा था कि जैसे मैं प्रीलिम का बता देता हूँ, देखो हम सबको रिसोर्सेज हम सबको पता है, मेन चीज़ होती है कि रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करना। जैसे मैं एंशिएंट मिडिवल कल्चर का आपको बता देता हूँ। मैंने क्या किया कि ओल्ड एनसीईआरटी जो थी 2005 वाली 11th-12th की, मैंने 6th to 10th वाली एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी कभी, है ना। 11th-12th वाली वो एनसीईआरटीज पढ़ी, उनके मैंने नोट्स बनाए। फिर न्यू एनसीईआरटी जो थीम्स वाली है, उसमें से आजकल काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें जो बातें एक्स्ट्रा थी वो मैंने उन नोट्स में ऐड करी। उसके बाद मैंने जैसे हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन के बाद उसका मैंने जब ऑप्शन सेक्शनल टेस्ट दिया विजन का, तो उसमें अगर मेरे 100 आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ठीक है, अगर उससे कम आ रहे हैं तो मतलब कि थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। उसमें जो भी गलतियां हो रही है वो मैं साथ ही साथ अपने उन नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। तो ऐसे कर करके मेरे कॉम्प्रिहेंसिव से नोट्स बन गए थे। अब मुझे पता था यार इसके बाहर से क्वेश्चन आएगा तो किसी को भी नहीं आता, और अपने इतना कॉन्फिडेंस रखना है कि यार जो मैंने पढ़ लिया बहुत है,
ऐसे अल्टीमेटली इतने सारे रिसोर्सेज के पीछे नहीं हमें भागना चाहिए, है ना। तो सबको पता है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एएमसी के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज है ना, रिसोर्सेज हम सबको पता है, एनवायरनमेंट के लिए शंकर है। तो मैं अभी भी एक बात कहूंगा कि करंट अफेयर्स के पीछे भी इतना नहीं भागना है, क्योंकि स्टैटिक अगर आपका 100% स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका प्री और मेंस फिर भी निकल जाएगा। करंट अफेयर्स का ऐसा है 10 क्वेश्चन आने हैं, आप सारी पीटी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, तो भी शायद 2-3 क्वेश्चन ही आते होंगे। और बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है तो गलत होने का स्कोप भी बहुत है। पर स्टैटिक का ऐसे है कि अगर आता है तो आता है। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे, मैंने लक्ष्मीकांत काफी बार पढ़ ली थी, तो 10 के 10 ठीक थे। तो ऐसे अपना स्टैटिक के ऊपर अपनी तैयारी को बेस करना, और करंट अफेयर सिर्फ एंड में। मैंने तो पर्सनली जैसे पीटी पढ़ी थी, वो भी सिर्फ इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की, तो उसमें तो कोई बहुत ऐसी ग्रेट फायदा हुआ नहीं था। तो ये प्री के था। अब मैं मेंस का बताया, तो जैसे मेंस में मैंने क्या किया था कि मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स थे अब तैयारी के लिए। तो उसमें मैंने मेंस की आंसर राइटिंग पहले बहुत कोई ग्रेट करी नहीं हुई थी, तो मेरे पास पहले मैंने 1.25 मंथ्स जो थे वो मेडिकल साइंस को दे दिए। उसके बाद का जो पार्ट था मैंने कहा जीएस करूंगा। तो उसमें मैंने ऐसे करा था कि 1-1.5 वीक मैंने एक जीएस को दिया था। मैंने विजन की मेंस की टेस्ट सीरीज दी थी। तो उसमें मैंने क्या करा कि अपने जो पिछले 2 साल के पेपर थे जीएस के, उनका मैंने क्वेश्चन उठाया कि आज जीएस 1 का ये 1.5 हफ्ता कर रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन उठाया, उसको अपनी तरफ से आंसर लिखा। फिर मैंने जो मॉडल आंसर्स थे उसके नेट पे आईएएस बाबा वगैरह ने डाले हुए हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व मीन्स, तो उनसे चेक करा कि वो क्या और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो टॉपर्स की आंसर कॉपीज थी, जैसे श्रुति शर्मा मैम की, सृष्टि देशमुख मैम की, उनकी कॉपीज एक बार बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है कि क्यों उनको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं और बाकियों को नहीं मिल रहे। वो कहाँ पे पॉइंट्स में यूज कर रहे हैं, कहाँ पे पैराग्राफ लिख रहे हैं, कहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं। जैसे मुझे स्टार्टिंग में जब मैं लिखना स्टार्ट करा था, मुझे पता ही नहीं था कि भाई डायग्राम को बॉक्स के अंदर बनाना होता है। मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूँ रैंडमली। फिर बाय द एंड में बना रहा हूँ डायग्राम ऐसे बॉक्स के अंदर, ऑन वन साइड ऑफ द मार्जिन, और नीचे लिख रहा हूँ फिगर और आगे उसका नाम। लेबलिंग भी यूनिफॉर्म एक डायरेक्शन में। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है प्रेजेंटेशन में काफी ज्यादा हमारे मार्क्स बढ़ाती हैं। एक खास बात कि पैराग्राफ में तो मैं लिखना अवॉइड ही करता था। सिर्फ इंट्रो और कंक्लूजन पैराग्राफ में होगी, बाकी सारा कुछ मेजरली पॉइंट्स में। और पॉइंट्स में भी ऐसे है कि हर एक चीज के हमें लिखने होते हैं प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस। तो प्रॉब्लम्स मैंने लिखने हैं पॉइंट्स में, और सोल्यूशंस के लिए मैंने साइड में बॉक्स बनाना है, सोल्यूशंस, एरो 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 एरो। तो देख के और साइड में बॉक्स में डायग्राम भी है, तो बड़ा डायनामिक सा आंसर लगता है, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगती है। रादर की सारे ही पॉइंट्स में हो तो बड़ी मोनोटनी सी आती है। जितने ज्यादा हेडिंग्स बना सकते हो, हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हो, वो अच्छा लगता है। पेपर चेक करने वाले को भी आसानी है। तो ये था मेरे लिए मेंस का। अब एथिक्स का जैसे मैं बता रहा था, एथिक्स के लिए मैंने क्या किया, वो हमें थोड़ा सा रह जाता है क्योंकि ना प्री में आता है, सिर्फ मेंस में आता है। तो एथिक्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने लेक्सिकॉन खरीदी, वो थी इंपॉर्टेंट बुक सुनी थी मैंने। सिलेबस मैंने अच्छे से देखा, सिलेबस में टर्म्स है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोबिटी, वो सारी डेफिनेशन मैंने लेक्सिकॉन से कर ली। उसके बाद मैंने दिल्ली में फोन करा यहाँ पे फोटोकॉपी वाली शॉप पे कि भाई कौन सी एथिक्स से सबसे रिसेंट नोट्स आए हैं। तो उन्होंने बोला, मेरे को लगा लुकमान के सुने थे, तो उन्होंने बोला कि बाजीराम की आई है अपडेटेड। तो मैंने कहा ठीक है, उससे पढ़ लेते हैं। तो मैंने उससे पढ़ा, जो भी उसके अंदर मटेरियल था अच्छा दिया हुआ था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके भी फ्लो चार्ट्स दिए हुए थे। और सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैंने सेम फ्लो चार्ट बना दिया था। आप एक बार सिलेबस और पीवाई क्यूज देखोगे ना, तो थीम्स एनालाइज हो जाते हैं। जैसे पिछले साल हमें पता ही था रशिया यूक्रेन का क्वेश्चन आएगा, एथिक्स में आ गया, इंटरनेशनल एथिक्स का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आजकल बड़ा जोर है इनका, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ गया है कि अदानी अदानी वाला सिस्टम चल रहा होता है। तो ऐसे करके आप थीम्स मोटे मोटे आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उस बेसिस पे आप तैयारी को थोड़ा सा कैलिब्रेट कर सकते हो। केस स्टडीज के लिए ऐसे था कि मैंने अपनी फिर एंड में काफी सारे टॉपर्स की पढ़ के, विजन के मॉक टेस्ट में गलतियां देख के एक नई सी स्ट्रेटेजी निकाली थी केस स्टडी कैसे करनी है। इतना लंबा पैराग्राफ होता है पेपर में, आप उसको एक बार से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, नहीं होता टाइम। पिछले साल का एथिक्स पेपर भी बहुत लंबा था। तो मैं पहले ही वहां पे साइड में बॉक्स बना देता था, जो जो नाम आ रहे हैं उसके अंदर कि ये है रवि है, ये है, ये है, तो साथ ही स्टेक होल्डर्स में लिख लिए। अब उसके बाद जब मैं उन पॉइंट्स को देखूंगा तो मुझे दोबारा स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये सारे बंदे थे। अब इसमें जब मैं लिखूंगा कि वे फॉरवर्ड में 3 चीजें होती हैं, एक है कि हाँ मैं मान जाऊंगा, एक है नहीं मानूंगा, तीसरा है मिडिल ग्राउंड। तो जो मैं मान जाऊंगा उसके अंदर अब मैं लिखूंगा प्रोज और कॉन्स बना के बीच में लाइन। अब प्रोज और कॉन्स में मेरा काम इतना आसान हो गया, मैंने हर एक स्टेक होल्डर था कि जो ट्रक यूनियन था, एक ट्रक यूनियन ने चक्का जाम करा हुआ था। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने, एक ट्रक ड्राइवर था, उसकी एक प्राइवेट गाड़ी वाले से लड़ाई हो गई थी। तो और वो जो प्राइवेट वाला था वो क्रिटिकली एडमिट था, और ट्रक ड्राइवर था जो मर गया था। ठीक है, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, पता चला कि ट्रक ड्राइवर की गलती थी, उसने पहले लड़ाई शुरू करी थी, और वो ही मर गया इनमें। और अब प्राइवेट वाला क्रिटिकली एडमिट है बंदा। तो अब यूनियन की डिमांड थी कि हमारे उस ड्राइवर को आप कॉम्पेंसेशन दो और उसकी फैमिली में से किसी को जॉब दो। तो अब इसका उन्होंने बोला था आप ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो, आप नए नए आए हो, आपकी फैमिली में भी दिक्कत है, आप इसमें क्या करोगे कि ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाए।
तो अब हम लोग गिवन, अब कोई कई मैंने बच्चों से बात करी पेपर के बाद अपने फ्रेंड से, तो वो कहते हैं कि हाँ यार हमने तो कहा कि दे दो, कॉम्पेंसेशन भी दे दो, वो भी दे दो, हम वेलफेयर स्टेट है, बट फिर ये क्या क्वेश्चन हुआ, क्यों देंगे, मना भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा हम उसकी फैमिली में से किसी एक को जॉब दे देंगे, मेरिट कंडीशन कि एवरी 6 मंथ्स में हम मेरिट टेस्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट 2 years, और देखेंगे अगर परफॉर्म करे तो दे देंगे। और सेकंड मैंने करा कि हम ट्रक ड्राइवर्स को बोलेंगे देखो हमने अपनी तरफ से एक चीज कर दी, अब आप अपने बंदे के लिए नहीं कर रहे तो आप हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हम उनको बोलेंगे कि आप एक फंड बनाओ, ठीक है, उस फंड में से एक छोटा सा पार्ट उस प्राइवेट बंदे की ट्रीटमेंट के लिए जाएगा जो एडमिट है, और रिमेनिंग पार्ट उसकी फैमिली को दे दो। तो हमने एक मिडिल ग्राउंड बनाया, ट्राई करा ना मिडिल ग्राउंड देने का, तो थोड़ा सा वो क्रिएटिविटी को रिवॉर्ड करता है। तो एथिक्स में इसलिए 119 आ गया आई थिंक, जो कि अच्छा स्कोर है इस साल। तो सिमिलरली बस ऐसे कर करके ये एथिक्स का था। बाकी मेडिकल साइंस का ऐसे था कि बाय द टाइम मेरा फाइनल ईयर खत्म हुआ था, तब तक मैंने सिर्फ एनाटॉमी और थोड़ा थोड़ा फिजियो कंपाइल किया था, बाकी मेरा रह गया था। तो जैसे ही प्री का रिजल्ट आने से पहले मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो उस टाइम मैंने कहा चलो थोड़ा मेडिकल साइंस ही कर लेते हैं, अगले साल की काम आ जाएगा। तो उस टाइम मैंने सिर्फ बायोकेम और माइक्रो का थोड़ा थोड़ा कर लिया था, क्योंकि 6 टॉपिक बायोकेम के, 9 टॉपिक्स माइक्रो के, तो जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैंने पहला 1.5 मंथ्स मेडिकल साइंस को दिया, जहाँ मोस्टली मैंने सारी चीज़ों के जो नोट्स थे वो कंपाइल करने शुरू कर दिए। क्योंकि मेडिकल साइंस का एक मेजर बैड पॉइंट है कि वो एक दिन में सारे पेपर है और वो नहीं याद रहता। तो उसके लिए अगर आपने पहले ही कंपाइल कर लिया है, तो जीएस और ऑप्शन के बीच में 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। इतना काम अपने कंपाइल करके अभी से रख लो कि जो लास्ट का 1 हफ्ता है ना उसके अंदर सारा रिवाइज हो जाए। और एक बात और है, कोई भी पेपर में यार कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, नहीं भी आता तो लिख दो, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, साइड में कोई डायग्राम, डिजास्टर कोई भी क्वेश्चन है रैंडम डिजास्टर साइकिल बना दो, पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना। एक टॉपर ने मेडिकल साइंस की भी बताया था, एक साइड में कभी ना वो फुट की आर्च पे क्वेश्चन आ गया था, तो उसमें लेटरल आर्च पूछ लिया था, तो वो कहते हैं मैंने कहा लेटरल है तो मीडियल भी होगी, सेंट्रल भी होगी, कह रहा मैंने ऐसे करके आंसर लिख दिया। तो ऐसे छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे, बाद में 2-2 नंबर का भी बड़ा फर्क पड़ता है। अब मेरी रैंक भी 69, 70, 71 तीनों के सेम नंबर है, तो अगर इतने पे ही इतना फर्क पड़ रहा है, नीचे रैंक्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है 1 नंबर से। तो मोस्टली मोटी मोटी ये स्ट्रेटेजी थी। अब आप लोग वैसे पूछ लो कि क्या क्वेरीज है, तो 2 वे ही रखते हैं ना, तो आप लोगों को क्या डाउट्स चल रहे हैं बताओ। जैसे आपने क्वेश्चन लिख दिया है तो उसमें जैसे नोट्स बनाया पॉलिटिक के, तो बाद में आते लक्ष्मीकांत जी, तो इसको एक बार कंपाइल करना है या फिर अलग मतलब ऐसे था कि कोचिंग के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए फिर फॉलो नहीं करे थे, थर्ड ईयर में बस सिलेबस का आइडिया लग गया था। जैसे एंड तक जो पॉलिटी के कोचिंग के नोट्स थे वो मैंने मेरे लिए उतने रेलिवेंट नहीं थे, मैंने लक्ष्मीकांत को ही फॉलो किया था। बट मॉडर्न हिस्ट्री में थे एक आधी चीज जो मैंने फिर अपने जो मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने सिलेक्टेड चीजों के नोट्स बनाए थे, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स, चार्टर एक्ट्स, जो बड़े वॉलेटाइल से कभी याद नहीं होते, तो उनके मैंने अलग से नोट्स बनाए थे और कोचिंग वाला इनकॉर्पोरेट करा था। बट ओवरऑल आई थिंक स्टैंडर्ड बुक्स में मेरा ज्यादा रिलायंस था, ऐसी थी बात। हाँ से हमने कोई चीज समझी है तो उसी को बार बार रिवाइज करना ज्यादा बेटर। हाँ हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वाला टॉपिक मुझे इतना अच्छे से आता है, तो पक्का ही कंपाइल करना चाहिए। दो दो सोर्सेज तो कभी भी नहीं रखनी। अगर आपको लग रहा है ये यहाँ बेटर है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ बेटर है तो यहाँ हो जाएगा, सिंगल सोर्स ही रखना है बस। जैसे एंड में ज्योग्राफी के अब 1 नोट्स हो गए, एएमसी के 1 नोट्स हो गए, बस और चीजें फिर पढ़नी नहीं। तो मतलब सारा कंपाइल कब तक हो जाना चाहिए, मतलब जैसे हमारे शॉर्ट नोट्स हो जाए। देखो, पहले तो कि आंसर राइटिंग यार तब स्टार्ट करना है जब एक बार प्री का सिलेबस हो जाए, क्योंकि आंसर राइटिंग का मेन पॉइंट ये है कि हमने इंटरलिंकिंग करनी है दूसरी डायमेंशंस की। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसमें ज्योग्राफी का एस्पेक्ट डाल लो। इस बार हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था कि बुल और लायन फिगर्स की सिग्निफिकेंस बतानी थी माइथोलॉजी में, तो उसके अंदर मैंने अशोक पिलर बता दिया कि लायन था इसमें। तो इसमें मैंने एथिक्स का पॉइंट डाल दिया कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द फोर्थ लायन ऑफ अशोक पिलर, इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट शुड नॉट बी सीन। तो एथिक्स का वैल्यू ऐड कर दिया वहां पे। तो ऐसे तभी आप डायमेंशन जनरेट कर पाओगे जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो रही बात कंपाइलेशन की, मुझे लगता है जनवरी फेब तक आप अपना सारा कंपाइल कर लो, उसके बाद सॉलिडली बस प्री के लिए उनको रिवाइज करते रहो। जनवरी फेब तक अगर कंपाइल करेंगे टेस्ट सीरीज तो उससे पहले मतलब देनी होगी। नहीं, टेस्ट सीरीज तो मैंने फुल लेंथ उसके बाद ही दी थी, ऐसे करा था। हाँ नहीं, प्री के लिए। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं था कि मैं पूरे साल फुल लेंथ टेस्ट लगा रहा था, मैंने एंड में दिए थे, और मैंने टोटल दिए थे 15 टेस्ट, है ना। तो वो 15 टेस्ट से ज्यादा मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि फिर मैं उनके सोल्यूशंस ना पढ़ता था, और सोल्यूशंस नहीं पढ़ा तो टेस्ट का फायदा नहीं है। और 15 टेस्ट की जो सोल्यूशंस है वो एक तरह से मेरे लिए वो बुकलेट ही होगी एक तरह से, कि प्री को क्विक रिवीजन के लिए, है ना। विजन के 15 टेस्ट दे दो तो उन्होंने काफी रेलेवेंट से क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं भी होते, बट मोस्टली एक क्विक रिवीजन के लिए फायदे में आ जाते हैं। तो मैंने ये करा था। सेक्शनल टेस्ट मैंने ऐसे करा था कि जब मैं अपने कंपाइलेशन ही कर रहा था, तो कंपाइल कर लिया एक सब्जेक्ट, एक बार उसको गो थ्रू कर दिया, फिर एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया।
फिर देख लिया कि यार क्या मेरे नोट्स लैकिंग है कि नहीं है। अगर जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म के क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं तो यूट्यूब पे एक बुद्धिज्म जैनिज्म की वीडियो देख ली, वैल्यू ऐड कर ली। दिसंबर जनवरी में। हाँ, आप अगर पूरे साल में कंपाइल भी कर रहे हो, जैसे मैंने आज एएमसी खत्म कर लिया, अभी मेरा नवंबर में ही हो गया, तो फिर मैंने उसके बाद उसको एक बार अपने नोट्स को पढ़ लिया आधा दिन लगा के, फिर उसी दिन मैंने टेस्ट दे दिया, फिर जो उसमें गलतियां वो ऐड कर ली। तो ऐसे करके कंपाइल करना अपना काम शुरू कर देना चाहिए। और हाँ? जैसे आपने विजन वो बताई, मतलब करंट अफेयर ज्यादा आ गई है मैं तो विजन की रैंकिंग पढ़ रहा हूँ मैं, तो कैसे मतलब कवर टू कवर पढ़ूँ या सिलेक्टेड बहुत ज्यादा? यार मतलब ऐसे था कि मेरी तो इंटर्नशिप भी चल रही थी है ना, फाइनल ईयर भी चल रहा था जो भी था, तो मैं न्यूज़पेपर भी डेली नहीं पढ़ पा रहा था। न्यूज़पेपर मेरे लिए मेजरली इस काम के लिए था कि मेरी वोकेबलरी इंप्रूव हो रही है, और मुझे जैसे एडिटोरियल में पता है वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में लिखते हैं, क्योंकि चेक करने वाले भी रोज वही पढ़ते हैं, तो मैं भी वैसे पढ़ रहा था कि मेरी थिंकिंग और राइटिंग वैसी हो जाए। तो वो न्यूज़पेपर सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स नहीं था, तो मैं विजन की पीटी पढ़ता था। तो अब पीटी एंड में पढ़ी थी मैंने, मंथली भी मैं ट्राई करता था, पर ना वो 2-3 महीने की पाइल अप हो गई कभी, कभी इस मंथ मैंने, पर मैं हमेशा इकोनॉमी और एनवायरनमेंट ज्यादा पढ़ता था। पर आईआर की पीटी से मुझे पता है कि क्वेश्चंस कुछ आए थे, वो मेरी रह गई थी, जिससे प्री में मेरे कुछ क्वेश्चंस आईआर के गलत हो गए थे। तो अगर करना ही है तो पीटी कर लो। अब करंट अफेयर्स का ऐसे तो कोई वन सोर्स नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे ना, वो तो कहीं से भी कुछ भी डाल देते हैं मर्जी से, तो ये है। जैसे मैं थर्ड ईयर एम तो पहले हमें जीएस करना चाहिए या जीएस प्लस मेडिकल साइंस दोनों साथ में? यार ऐसे है कि दोनों साथ साथ ही करना चाहिए पहले तो ना, कि अभी सिर्फ, वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि जीएस पहले कर लो, बट जैसे बीच में कुछ कुछ टाइम है ना, तो अपने फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ पे ना थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर दो, कि जैसे एनाटॉमी कर लो, या 6 महीने लगा के एनाटॉमी कर लिया, साथ साथ जीएस चल रहा है, लास्ट के 6 महीने लगा के फिजियो कर लिया, साथ साथ जीएस चल रहा है। फाइनल ईयर में तो यार पक्का ये करना है कि यार स्टार्टिंग से ही ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना यूपीएससी के, जब अपनी प्रॉफ की पढ़ाई करेंगे हम, प्रॉफ में प्रीवियस ईयर की लिस्ट बना लेते हैं, टिक करते हैं, देख लेना जो ओवरलैपिंग है, फिर उनके पहले ही नोट्स बना लेना। जो अक्षिता मैम थे ना, 69 रैंक आए थे उनको, मेरे कॉलेज के सीनियर थे, तो उन्होंने फाइनल ईयर में कुछ कंपाइलेशन कर ली थी, क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत बढ़िया है, तो मेरे को एंड में बहुत ऐसे भाग दौड़ करनी पड़ी, तो अगर टाइम है तो पहले ही कर लो। मैं जीएस पे ओवर ही रिलाई कर रहा था, ऑप्शनल को मैंने थोड़ा बैक एंड दिया था उस टाइम पे, तो उसका बाद में नुकसान भी हुआ, तो पहले कर लो तो बहुत बढ़िया ना। तो जीएस के नोट्स यार जीएस जैसे मैं मेंस के तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैंने क्या किया था एक्चुअली में, और ये सही में यही था कि 1.5 महीना था ना, मैंने एक हफ्ता क्या किया, जैसे मैंने पीवाईक्यूज उठा लिए, जैसे मैंने बताया मॉडल आंसर से चेक करा, टॉपर कॉपी से चेक करा, तो 2 साल के मेरे पास जीएस 1 हो गए। वीकेंड पे जाके मैंने 2 विजन के टेस्ट दे दिए जीएस 1 की सेम डे पे, फिर वो चेक होके आ गए, उनकी गलतियां और उनके सॉल्व आंसर, और मेरे पास 4 सॉल्व पेपर हो गए एक जीएस के। एंड में होता है अभ्यास जो मेन से 10 दिन पहले होता है, 1 2 3 4 करके, तो वो मैंने टेस्ट दे दिया, मेरे पास हो गए 5 सॉल्व पेपर, मतलब 100 क्वेश्चन हो गए। अब वो 100 क्वेश्चन के ऊपर सोल्यूशन है ना, वो बार बार पढ़ी जाए। अब उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाए, पर उससे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है यार, कोई भी रैंडम क्वेश्चन आएगा ना ऑफ द बीट सा, तो मैं उसको अटेम्प्ट कर लूंगा, बस अपनी प्रेजेंटेशन ठीक रखनी है। अब क्वेश्चन आ गए, इस बार आईएमडी ने कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स के बारे में क्या कहा है, अब किसको आता था, मतलब ऐसे कलर कोडेड तो ऐसे नहीं पता थी, इतना मोटा मोटा आइडिया था, मैंने कहा रेड ऑरेंज येलो ही होंगी, रेड ऑरेंज येलो लिख दी वही थी। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है वहाँ पे, अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड रखनी है, तो हो जाएगा। तो आपके मेंस का मेन सोर्स यही था, 5 पेपर? 5 सॉल्व पेपर्स ही थे, बट प्री के बाद ना मैं ऐसे, अब जैसे क्वेश्चन था कि 18th सेंचुरी में इंडिया में फेमाइन्स आ गए, उसका क्या कॉज है, तो अब वो क्वेश्चन ऐसा था कि आप चाहे कहीं पे भी आपने कभी नोट उसका बनाया ही नहीं होगा, तो हमें वैसे भी अपनी पुरानी नॉलेज से ही उसको ड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई इंडिगो कल्टीवेशन आ गई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उधर आ गई थी, तो उनको यहाँ पे सप्लाई इन्होंने कॉटन की शुरू करा दी थी, तो ये वो, तो ऐसे करके पॉइंट्स हमारे दिमाग में वहां से उठ के आ जाते हैं। तो वो सिर्फ जब हम ऑन द स्पॉट जैसे विजन के टेस्ट या कोई कर रहे हैं ना, तो हमारी थॉट प्रोसेस उस टाइम डेवलप हो जाता है बहुत। ऐसे में आपके काफी सही नंबर थे, तो उसके लिए कुछ ऐसे के लिए मैं बता देता हूँ यार, ऐसे के लिए सबसे पहले ये था कि मैंने अनुदीप जोशी शेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा था, है ना, तो उसके अंदर उन्होंने टेम्पलेट्स दे रखे हैं हेल्थ एजुकेशन वगैरह के, ऑल्दो वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे ही आता है, बट एक थोड़ा बहुत हमारे पास आइडिया हो जाता है कि श्लोक लिखे हुए हैं, कुछ लिखे हुए हैं ऐसे वैसे। दूसरा था कि मैं ऐसे हमेशा स्टोरी से स्टार्ट करता था, है ना, हमेशा एनेक्डोट से स्टार्ट करता था और एनेक्डोट से ही खत्म करता था, जो जहाँ से शुरू हुआ है एंड में बस उसको थोड़ा सा ले आए। तो वो एनेक्डोट्स जब मैंने कहा ना, एथिक्स में हम लोग केस स्टडीज जब आप लोग करोगे या एथिक्स का जनरल पढ़ोगे, तो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल बहुत सारे याद करने, क्योंकि वो इस बार तो पेपर में पूछ लिया, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ रेलेवेंट सिविल सर्वेंट्स, तो अगर वो मैंने अच्छे से याद करे हुए थे, तो उनमें से आधे तो हमारे कॉमन है जो एसए के हम इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, कि आर्मस्ट्रॉन्ग कामे सर ने रोड बनाई थी, एक डॉक्टर रवि कन्नन है असम के, जिन्होंने वहाँ फ्लड में मेक शिफ्ट बोट बनाई थी, इनफैक्ट ये मेरी एसए की स्टार्टिंग ही थी।
तो ऐसे करके वो हमें वहां से फॉर्डर मटेरियल मिल जाएगा। फिर एस्से में क्या करना है आपने कि एस्से को दो चीजों में डिवाइड करना है, पहले प्रॉब्लम्स में और फिर सोल्यूशंस में। और जितने ज्यादा डायमेंशन आप कर सकते हो वो कर लेना। एक टॉपिक मैंने सुना था पेस्ट जेम अप्रोच थी, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल, है ना, एथिकल, मॉरल, ये सब, एनवायरमेंटल। तो ये सारे आपने करने हैं डिवाइड। पर पैराग्राफ में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ये सिर्फ, जैसे कई लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकली, सोशली, ये नहीं करना। उसको जेनेरिक सा रखना है और उसको बताना है। और हर एक पैराग्राफ में आपके मिनिमम 2 एग्जांपल्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो तो 2 एग्जांपल्स होने चाहिए। तो फिर ऐसे करके आपका एस्से जो है बड़ा वैल्यू रिच होएगा। और हर एक पैराग्राफ की लास्ट लाइन में ना कहीं शो होना चाहिए कि मैं अगला पैराग्राफ स्टार्ट करने वाला हूँ उस वाले डायमेंशन से, है ना। अगर या फिर अगर सोशली अगले में नहीं लिखना तो बोलना अपार्ट फ्रॉम ये देयर आर अदर सोशल डायमेंशंस टू इट एज वेल, और फिर करके स्टार्ट कर देना। तो ऐसे करके जब आप पेस्ट जेम करोगे तो आपके पास 10 पैराग्राफ होंगे। और उस 10 पैराग्राफ में भी आप पॉलिटिकल उसके प्रोज बताओगे, उसके कॉन्स बताओगे और 2 एग्जाम्पल लिखोगे। तो ऐसे करके और उसको लिंक करोगे अगली लाइन से। तो ऐसे करके आपको बड़ा होलसम से ऐसे हो जाएगा उसको। अब मेरे पास एक्चुअली 10 मिनट बच गए थे ऐसे में, मैं घड़ी नहीं लेके गया था, वो भी नहीं थी, तो मैंने वहां पूछा बाद में टाइम, तो अभी 10-15 मिनट रह गए थे, खत्म हो गए थे मेरे, इतनी सी जगह रह गई थी। तो मैंने 4 लाइन की पोएम ऑन द स्पॉट बना के लिख दी। वो ऐसी 2 राइमिंग वर्ड सोचे और ऐसे करके लिख दी जो होती है जेनेरिक सी पोएम। तो मुझे लगता है उसका भी फायदा हो गया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्रिएटिविटी थी। दोनों एनेक्डोट से स्टार्ट करते थे। मैंने प्लान करा था कि मैं शायद ऐसे में हेडिंग्स भी लिखूं कहीं कहीं की, ये जैसे वो बोलते हैं चैलेंज और डिलेमा ऐसे करके हेडिंग्स होती है ना। पर मैं वहाँ पे फिलोसफिकल ऐसे में नहीं लिख पाया क्योंकि मुझे लगी नहीं रेलेवेंस उनकी। टेक्निकल में लिख सकते हैं बढ़िया हेडिंग्स, फिलोसफिकल में मेरे को लगा फ्लो ऑफ थॉट चल रहा है तो चलने देते हैं। तो आपकी मर्जी है, हेडिंग्स यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। बट ओवरऑल डायमेंशन जनरेशन स्टार्टिंग विद एन एनेक्डोट, कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि कोट या पोएम है तो उसको एंड में रख लो, पर स्टार्ट हमेशा स्टोरी से करो। कई लोग कोट से भी स्टार्ट कर देते हैं, वो भी हो सकता है ठीक हो, बट अगर स्टोरी से स्टार्ट करो ना बड़ी ग्रिपिंग सी हो जाती है, बंदे का मन करता है उसे पढ़ने का। तो ये ऐसे के लिए मैंने फॉलो किया था। बेसिकली पॉलिटिकली और सोशली मेंशन करना है, लेकिन कुछ बताया कि अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल डायमेंशन। मतलब इसको भी थोड़ा सा आप वो फाइन ट्यून कर सकते हो। मेरे को पता है अगर मैंने सोशल वाले में ये लिखना है, या आप बोल दो इट कैन बी गेज फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ ये जो कि सोशल एग्जांपल है, और फिर अगला पैराग्राफ वहां से स्टार्ट कर दो कि विमेन वगैरह पे अगर आप लिख रहे हो ऐसे करके। तो वो आप पे कहीं कहीं मेंशन भी कर दो, कहीं कहीं नहीं भी करो। बट ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये जीएस का लंबा सा आंसर है। आंसर कंप्लीशन में कोई यार आई मैंने अपना पहले टेस्ट दिया, मेरे को ऑलमोस्ट 4 घंटे लग गए, और तभी शायद एक क्वेश्चन रह गया था। और ये बात थी जो अपना जून जुलाई की बात थी। तो मैंने कहा कोई नहीं यार कर लेते हैं। पहले तो मेरे को था कि आंसर क्वालिटी के आ रहे हैं, पर हम काफी बार ये करते हैं कि जब तक आंसर क्वालिटी के नहीं आएंगे तब तक मैं टाइम से कंप्लीट नहीं करूंगा। तो ये हम लोग बड़ा करते हैं, वो कभी नहीं आएगी क्वालिटी आंसर की, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्वालिटी क्या है यूपीएससी की। अब मुझे भी नहीं पता था मेरी क्या क्वालिटी है। अब जीएस में नंबर आ गए तो लग रहा है शायद आंसर बढ़िया थे, है ना। तो एंड तक नहीं समझ आता कि कैसे चल रहा है ना। तो आपने टाइम करना है कि हमें पेपर अपना टाइम से कंप्लीट करना ही है। तो मेरा इनफैक्ट फर्स्ट टेस्ट जो खत्म हुआ था वो हुआ था अभ्यास। अभ्यास उससे पहले ना जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं सेंटर में ना, तो कोई ओवरसी नहीं कर रहा होता, तो हम लोग अपनी पेस पे चलते रहते हैं। फिर भी मैं घड़ी से टाइम कर रहा था, बट 3:18, 3:15, 3:20 एंड तक भी यही आ रहा था। फिर अभ्यास में जब मुझे पता चल गया यार ये तो पेपर छीन ही लेंगे, तो मैंने उसमें स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा तेज लिखना शुरू करा। तो एंड तक अभ्यास मेरे चारों खत्म हो गए थे। तो वो फर्स्ट मेरे 4 टेस्ट थे जो टाइम से खत्म हुए हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार टेस्ट टाइम से खत्म हो सकते हैं। तो पेपर में भी स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्पीड मेंटेन करनी है। हम जनरली स्लो स्टार्ट करते हैं और एंड में बहुत तेज करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही बहुत तेज करता था। और अब कई लोग कहते हैं यार हमने 15 मार्कर्स पहले कर लेते हैं कि भाई वो बड़े हैं एंड में छूट ना जाए इसलिए। मैं तो 10 से ही स्टार्ट करे थे। बट कई बार मैं ऐसे कर लेता था कि 10 कर लिया ना, 10 में से 2 क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही आइडिया सा नहीं आ रहा बिल्कुल ही, तो वो मैं छोड़ देता था कि कोई नहीं यार इनको देख लेंगे। तो मतलब ऐसे सा था, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 15 वाले पहले कर लेने हैं, क्योंकि 10 वालों में भी क्योंकि स्टार्टिंग जब पेपर की हुई है तो वो भी तो अच्छी होनी चाहिए। एग्जामिनर को लगता है अरे बंदा बढ़िया है। अगर 15 वाले पहले कर लो, 15 वाले चाहे आप थोड़े से एंड, और एग्जामिनर को ये भी पता है कि एंड में 15 वाले हैं तो हो सकता है यार टाइम कम था इसने थोड़ा ऊपर ऊपर से लिख दिया। तो ऐसी बात नहीं है, आपको जो अपना फिक्स और बढ़िया लगता है ना अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी डिवाइस करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, है ना। ऐसे सोर्सेज किसी ने पूछा, ऐसे सोर्सेज यार वही अनुदीप शेट्टी सर का ब्लॉग था, और ओवरऑल जो जीएस की तैयारी है उसके बेस पे ही हम लोग अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। मैंने ऐसे पेपर से पहले मैंने 3 ऐसे लिखे थे, एक टेक्निकल और 2 फिलोसफी, और मैं कहीं से इवैल्यूएट भी नहीं करा पाया था। वो मैंने अपने फ्रेंड को दे दिए थे कि यार पढ़ने ठीक लग रहे हैं, तो उसने कहा था कि ठीक ही लग रहे हैं, तो ऐसे था। ऐसे का काफी, तो वही है बस अपना अच्छे से थोड़ा हैंड राइटिंग नीट रखो, जहाँ पे पॉसिबल है अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को, है ना। और बताओ पूछो। सर आपने ऑनलाइन तो कितना है यार मतलब ये था सिलेबस मुझे पता चल गया,
अब ये नहीं था कि उसके बेसिस पे तैयारी होगी। हाँ 5 to 8 जाता था, 5 बजे कॉलेज खत्म होता था, 5:30 से कोचिंग पहुंचता था, 8 बजे तक खत्म कर लेता था। नहीं 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 है, वो तो उसी साल खत्म हो गया था, फाइनल ईयर के कोविड के बीच में टाइम आया था हमारा 2020 वाला, उसमें मैंने फिर ऑनलाइन एक्सेस लेके वो खत्म कर दिया था। बट वो था कि उससे यार सिलेबस तो कंप्लीट हुआ था, क्योंकि कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है कि वो पूरा बता देंगे, वरना तो सबका ही हो जाए। तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और वो मेजर कैसे है, PYQs एनालिसिस करके कि यार ये कैसे पूछ रहे हैं। टॉपर्स कॉपीज में अभी बता रहा हूँ, पक्का देखना और बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जो उनका तरीका है ना लिखने का, वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। श्रुति शर्मा में एग्जाम्पल के आसपास ट्राइंगल बनाती थी, मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो 5-6 टॉपर्स की स्ट्रेटेजी कंबाइन करो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, तो आपका आंसर बहुत बढ़िया है। सब में ऐसे होता है, जैसे कोई भी चीज पढ़ी पढ़ जाए एक बार, ये अच्छे से कर ली थी, फिर भी यार यार कुछ भी नहीं हो रहा, कभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे आपके साथ। यार वो तो हमेशा ही होता है, अब कोई भी लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ ले कुछ भी नहीं याद रहेगा, 2 बार ही पढ़ लो तो भी नहीं याद रहता। मैं तो कहता हूँ मैं 6 बार ही पढ़ी तब भी बड़ी मुश्किल याद हुई। तो बेसिक कंसेप्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं यार, पर रेपिटेशन ही इसमें की है, जितनी बार आप कर सकते हैं। याद ही नहीं हो पा रहा है, किस तरीका सही है मेरा, ये नहीं है। नहीं नहीं यार, तरीके का क्या है याद करने में, बस रिपीट करते जाओ। मैं कहता हूँ 5-10 बार, जैसे चार्टर एक्ट मुझे आज तक नहीं आया, और मेरे को पेपर भी नहीं आते, वो कभी भी नहीं याद होते, मैंने प्रिंस को भी बताया था, मेरे को भी याद नहीं होते वो। एनसीईआरटी पढ़ने का कोई बेनिफिट है? यार मैंने 6 to 10 की नहीं पढ़ी, 11th 12th की पढ़ी थी, वो ही बता देता हूँ कौन सी पढ़ी थी। ज्योग्राफी की पढ़ी थी, फिजिकल इंडियन की, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमी पढ़ी थी, AMC वाली ओल्ड और न्यू पढ़ी थी, और शायद कोई नहीं पढ़ी थी। यही थी NCERTs जो मैंने पढ़ी थी। तो बाकी यार स्टैंडर्ड बुक्स में सब कुछ है वैसे, पर NCERTs ये है कि पढ़ लो, सिर्फ 11th 12th की पढ़ी थी मैंने। हो सकता है उसका कहीं नुकसान हो कि स्टार्टिंग की नहीं पढ़ी, तो पर पता नहीं, पर मेरे को तो उससे कंफर्टेबल सा हो गया था कि हाँ यार समझ आ गई है। मेडिकल साइंस का reading पूरा होता यार सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था, मतलब ऐसे था कि कुछ सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी है वो मैंने कर लिए थे, क्योंकि मैंने उनके ना डायग्राम्स बना के रखे हुए थे, तो वो मैं बार बार कर लिए। पैथ का ऐसे था कि पैथ मैंने सिर्फ ना HND वाले डायग्राम्स अलग अलग से बना के रखे हुए थे कि पेपर से, है। मुझे फर्स्ट सेक्शन के पे टारगेट ज्यादा करता है। मतलब मैंने तो कर लिया था कि सेक्शन A पक्का करना है, क्योंकि यार सेक्शन B ऐसे था ना, केस स्टडीज उसमें बहुत आती हैं। अब क्योंकि हमने ऐसे सर्विस नहीं करी हुई थी, मैं तो इंटर्न ही था, तो मतलब वो था कि क्लिनिकल अप्रोच थोड़ा सा मुश्किल लगता था मुझे, तो मेरे को था कि जो पार्ट पेपर A है कि उसमें, क्योंकि पेपर 2 में ये है कि नहीं भी आते तो लिख सकते हैं कि कैसे हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट, अप्रोच द पेशेंट, तो कुछ तो एक चीज और कि पेपर 2 में हर जगह एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाना चाहे बना सकते हो। इसका कुछ आप चैनल पे मतलब हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ यार, मैं अपने नोट्स ना कुछ जो है स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एल्गोरिथम टाइप के। हाँ हाँ, क्योंकि वही है ना कि यार ऐसे आया पेशेंट, उसका हिस्ट्री, इफ नॉट दिस देन दिस दिस देन दिस दिस, मोस्टली मैंने ऑन द स्पॉट भी बनाए वहाँ काफी एल्गोरिथम, क्योंकि मतलब एल्गोरिथम से ही थोड़ी प्रेजेंटेशन आती है, पर सिर्फ भरने के एजेंडा से नहीं भरने हमने ना, साइड में आप बॉक्स बना के ऐसे कर सकते हो और फ्लो ऑफ थॉट चलने दो। और हर चीज में आप जितना मर्जी, अनाटमी में जैसे क्लिनिकल कोरिलेशन में ये चीज है, उसका छोटा सा ट्रीटमेंट कि फ्रोजन शोल्डर है, डायबिटीज से कोइंसिडेंस है, ऐसे थोड़ा सा कर सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। उनको लगता है कि इसको पूरी नॉलेज है चीज की। तो मोटा मोटा तो यही है। और कोई कुछ पूछ रहा था मुझे? प्रिपरेशन के स्टार्ट तभी ऐसा लगता है मेडिकल साइंस फास्ट है जैसे हाँ मेडिकल साइंस वास्ट है यार, देखो मैं भी पर्सनली बोलूंगा, ले सकते हो तो कुछ और ले सकते हो तो ले लो, बट ये है कि मेडिकल साइंस अगर कर लोगे, मेडिकल साइंस में एक हमें कॉन्फिडेंस है कि यार अगर कुछ भी नहीं आता तो लिख देंगे। अब एंथ्रो और सोशल में हो सकता है मैं एंथ्रो सोशल लेता हूँ, उसमें ज्यादा आ जाते हैं, बट ठीक है मेडिकल साइंस के साथ चल रहा है काम, और हमारे पास थोड़ा सा बैकअप से भी होता है कि यार एटलीस्ट वी आर इन टच विद आवर सब्जेक्ट ना। और मेडिकल साइंस का ये है कि बहुत कम नंबर भी नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं आएंगे, बहुत कम भी नहीं आएंगे, एक एवरेज स्कोर तो हमेशा रहेगा, 250 60 70 ऐसे, इतना तो रहेगा ही। तो ये हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी रहती है, तो इसलिए मेडिकल साइंस ठीक है मुझे लगता है। बट हाँ बीच में लगता था कि कई बार कि यार शिफ्ट कर लूँ, मैं तो सोच रहा था कि अभी नंबर देखूंगा कि अगले साल क्या करना चाहिए, बट मुझे पता था अब नहीं शिफ्ट करूंगा कि पढ़ लिया एक बार ना, तो नोट्स पूरे रेडी हैं, तो हो जाएगा। अब पहले भी आए हैं लोगों के 300 प्लस भी आए मेडिकल साइंस में, हमने देखा है, तो इस बार के हाईएस्ट 287 भी थे मेडिकल साइंस में, तो आने के आ भी जाते हैं नंबर, तो इसलिए ऐसी बात नहीं। जैसा होता है कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, तो क्लास में होते हैं ना, कुछ टॉपिक्स होते हैं या कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो एक स्किप ही कर देते हैं कि नहीं जिसे नहीं पढ़ना, क्वेश्चन भी आएंगे तो छोड़ दें। क्या आप लोग भी ऐसा कुछ स्ट्रेटजी अपनाते यार मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कर दी इसके मतलब मेरे को पता है वर्ल्ड हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आना है GS में,
अब वो एक क्वेश्चन आना है, मैंने कहा यार उस एक क्वेश्चन के लिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूं, मेरे पास नहीं था टाइम। मैंने कहा अगर यार आ गया क्वेश्चन तो कोई नहीं, देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही दूंगा। विजन के मैंने मॉक टेस्ट में लिखा था एक में वर्ल्ड हिस्ट्री का रैंडम सा क्वेश्चन, उसको मैंने ठीक नंबर दे दिए थे। तो मैंने कहा आएगा तो लिख दूंगा यार, उसके लिए पूरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहा, फॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो कि जो मुझे लग रहा है। पर लोग बोलते हैं ना कि मिडीवल हिस्ट्री छोड़ दो, वो नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आते हैं, जीएस में भी आ जाते हैं उसमें से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही मिडीवल टेम्पल स्कल्पचर्स का था, तो इसलिए वो नहीं छोड़ना। पर जैसे जैसे जो आपको लग रहा है कि यार एक ही क्वेश्चन आने चाहिए, तो वो आप छोड़ सकते हो, तो वो ठीक है, बस फिक्स है। तो और किसी को कोई क्वेरी है तो पढ़ते हैं तो कई बार हो जाता है कि याद नहीं आ रहा मतलब क्या पढ़ा है, एंड में ये हो जाता है कि पूरा एडिटोरियल पढ़ लिया, हुआ क्या। बस वही है, मोटा मोटा आइडिया रखना है। मैं बता रहा हूँ एडिटोरियल का ये नहीं है कि यार मैंने उसमें से करंट अफेयर बनाना है, न्यूज़पेपर के नोट्स में बनाना है यार, कोई मतलब मर्जी है वैसे, मैं बोलूंगा मत बनाओ, है ना। तो फिर उसको पढ़ लो, एक तरह से थीम का आइडिया ले लो, कोई बढ़िया सा वर्ड लग रहा है उसको यूज करने लग जाओ। जैसे अब लूप होल्स को क्यों मैं यूज करने लग गया हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स थोड़े थोड़े आइडेंटिफाई कर लो जो बढ़िया से लगते हैं। ऊपर से कई बार होती है कुछ लाइंस जो उसमें अच्छी होती है, वो मैं नोट कर लेता था, कई काफी बार मैं उनको वापस देखना भूल जाता था, पर कुछ तो फायदा हो जाता था। मैं तो कर लेता हूँ, जैसे कुछ मेल से रिलेटेड कोई पॉइंट पॉइंट वगैरह मैंने नोट कर लेता हूँ। लेकिन कई बार ओवरऑल स्टोरी नहीं समझ आती है एडिटोरियल की। नहीं वो तो फिर मेरे को लगता है अगर लगातार आप 2-3 दिन तक उसको फॉलो करो ना, तो वो वाला थ्रेड समझ आने लग जाता है कि अगर कोई नई चीज पे एडिटोरियल आया है, वो जनरली अगले 4 दिन तक वैसे उसके अराउंड ही बातें घूमती रहती है। तो बाय द एंड ऑफ 4-5 डेज जब वो इवेंट चली जा रहा है, तो वो ठीक हो जाएगा, समझ आने लग जाएगा। तो फिर ये है मतलब 1 घंटा पढ़ता हूँ मैं न्यूज़पेपर, उसमें सिर्फ मेरा होता है एक्सप्लेन पेज अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस का और एक दो एडिटोरियल नोट, इससे ज्यादा कर भी नहीं पाता। तो वही है यार, धीरे धीरे इम्प्रूव होएगा अगर आप पढ़ोगे न्यूज़पेपर ना लगातार। तो तो पूरा पढ़ते हैं यार पूरा नहीं, ये दो जब टाइम कम है तो ये दो पढ़ लो। जैसे मैं अगर ड्यूटी पे होता था, सुबह न्यूज़पेपर ले गया, बीच में ये 2 पेज पढ़ लिए। बट पढ़ना है तो इंटरनेशनल वाला पेज भी पढ़ लो, थोड़ा सा इकोनॉमी वाला पेज भी पढ़ लो, और फ्रंट पेज पढ़ लो। एडिटोरियल के अलावा ये 3 पेज पढ़ लो तो बहुत है। तो टीचर को कुछ यार सी सैट का ना मैंने नहीं किया था कुछ। सी सैट का ना मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे, तो मेरे उसमें 120-130 आ रहे थे। मैंने विजन का अभ्यास दिया, उसमें 130-140 आ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है नहीं करना। बट इस बार का पिछले साल का पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया, मेरे नंबर 100 थे अल्टीमेटली। तो 30 नंबर का तो शौक मुझे भी लगा था कि, पर हो गया था कंफर्टेबली क्लियर, तो मैंने सी सेट का कुछ किया नहीं था खास। तो पैराग्राफ्स में पहले कर लेता था, 2 पैराग्राफ कर लिए मेंटल एबिलिटी, 2 पैराग्राफ मेंटल एबिलिटी। मैथ्स में तो दिक्कत मतलब हमें आती है थोड़ी सी, तो मैंने उसमें भी, अगर उसने बोला है कि ABCD ऐसे लिख लिया फिर उल्टा करके लिख दिया, 51st नंबर पे क्या है, तो मैं पूरा ABCD सीधा करके उल्टा लिख के फिर 51 काउंट कर रहा था। तो ऐसे ब्रूट फोर्स से ही मैं सॉल्व कर रहा था, ऐसे नहीं था कि मेरे को बहुत ज्यादा आता था मेंटल एबिलिटी वगैरह। बट प्रीवियस ईयर्स देख के एक बार फॉर्मूले वगैरह की छोटी सी लिस्ट बना लो ना, तो थोड़ा फायदा हो जाए। नहीं यार, मैंने मेंस 365 प्रिंट करा के रख ली थी, पर मतलब यार टाइम नहीं मिला उसको करने का। मैंने वो किया था MK यादव सर का ना, QEP था, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम। तो वो मैंने किया था, वो बढ़िया लगा था मुझे। उसके अंदर उन्होंने ना फॉर्डर पॉइंट्स दिए हुए थे, टेम्पलेट दिया हुआ था कि जैसे इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन है, ये डायग्राम बना दो। नक्सलिज्म का ये 2 पेज का नोट है विद केस स्टडीज, विद ग्राफ जो कम ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है GS3 में 100 आ गए, जो कि शायद हाईएस्ट से ही है इस साल। तो मुझे लगता है उसका काफी फायदा हुआ है उसमें। ये तो नहीं किया था आपने? IR यार, IN ने नहीं, सिर्फ QEP। तो मतलब मैंने कहा ये नहीं, देख लेंगे यार करंट अफेयर्स का जो भी होगा। तो ये था। ऑनलाइन है क्या कुछ डाउट्स? बड़े सारे आ गए हैं। फिर बीच बीच में ड्रॉप्स आ गए मेडिकल, तो 2-3 महीना कोई बन हाँ तो 3-4 महीने बंद UPSC प्रोफेशन। भाई कॉलेज का फेस्ट आ रहा है तो वो भी लगाना है, ये नहीं करना कि पढ़ना ही है। मैं तो सारे फेस्ट कुछ लगाए थे, मतलब ऐसे यार कॉलेज भी तो एक चीज है, बाद में फिर मिस हो जाता है करना। तो ऐसे होता था साल में। अब मैं जैसे 3rd ईयर से पढ़ रहा हूँ, तो ये थोड़ी था UPSC सारा दिन करी जा रहा हूँ। UPSC की क्लास लगा रहा था मैं बस, दिन में 3 घंटे। प्रॉफ आ रहे हैं तो मैंने जैसे नवंबर से बंद कर दिया ये सब, सितंबर अक्टूबर से। फिर 20 स्टार्टिंग के जो मंथ्स है उनको कैपिटलाइज करा, उसमें करना है। तो फिर ऐसे करके थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करना है कि प्रॉफ में भी पास तो नहीं है, और थोड़े अच्छे नंबर से आ जाए तो ठीक ही रहता है। और प्रॉफ के लिए पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्टली ऑप्शन का भी तैयार हो ही रहा है। तो वही बस है कि वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लेना जो UPSC में भी है और प्रॉफ में भी कॉमन है, और वो एक जगह इकट्ठे कर लेना अभी से, है ना, तो वो बड़ा फायदा हो जाएगा। मैंने 3rd ईयर में ऑफलाइन लगाई थी, चंडीगढ़ में। जैसे काफी हो गया difficult, तो कई लोग कह रहे हैं मैं बात करता हूँ, इसे शुरू कर दो free के लिए। यार मैं बोलूंगा कि वैसे अगर प्री के लिए कर रहे हो ना, तो दिसंबर एंड से तो शुरू कर दो होली फॉर प्री, अगर तुमने वो वाले साल का प्री देना है ना। क्योंकि मेंस का तो चलो प्री के बाद ना थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है, क्लियर होने के बाद बंदा उस जोश जोश में आंसर राइटिंग ठीक ठाक कर लेता है।
बट अगर प्री नहीं निकला तो फायदा नहीं। तो मैं काफी हेवीली प्री ओरिएंटेड ही तैयारी करता था अपनी आंसर राइटिंग, तो फिर बाद में इस तरीके से मैंने करी थी फॉलो। तो बट हाँ, अभी वाला टाइम तो बिल्कुल मीन्स आंसर राइटिंग में एथिक्स ऑप्शनल के लिए कैपिटलाइज कर लो। ऐसे भी तभी बढ़िया आएगा जब सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी इंटरलिंकिंग ही करनी है सारी हमें, है ना। हाउ टू टैकल प्रीलिम्स, रिवाइज मेडिकल साइंस, इंक्रीज मार्क्स इन मेडिकल साइंस। हाँ, ये तो वही है बातें जो हमारी हो गई हैं डिस्कस। ये मेडिकल साइंस की प्रेजेंटेशन वगैरह की जैसे हमने बात कर ली, मैं भी ट्राई करूंगा कि कुछ मॉडल आंसर मेडिकल साइंस के या अपने नोट्स का कुछ कुछ ना मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि मेरे को पता है कि चाहिए होता है। जैसे अक्षिता मैम को मैंने देखे थे उस टाइम पे, वो कुछ फ्लो चार्ट्स में सारी बातें करते थे अपनी, तो मैंने भी तभी फ्लो चार्ट्स ही बनाने काफी ज्यादा प्रेफर करे थे। तो जितना ज्यादा हो सके हमें फ्लो चार्ट्स ही बनाने चाहिए। इनफैक्ट अगर नहीं भी लग रहा ना क्वेश्चन की यार कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच द पेशेंट, तो फ्लो चार्ट बना दो, चाहे जैसा भी है अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बना दो, बस फ्लो चार्ट बस दिखना चाहिए कि प्रॉपर एनालिटिकल सी अप्रोच करिए हमने। तो बस यही है, बाकी यार डायग्राम जितने बना सकते हो बनाना, कलर पेंसिल से कलर करना। मैं डायरेक्टली ब्लैक पेन से डायग्राम बना के उसको कलर कर लेता था। HND का यूज करना, और डब्बा बना के जहां पॉसिबल है पैथ में HND बना दो। तो यही है, बाकी किसी को कोई डाउट। एग्जाम्पल कितने याद करते हैं, जैसे सारे चीज के पेपर होते हैं, सारे चीज के पेपर एग्जाम करना। यार वही है ना, देख GS 1 2 के बीच में टाइम है, 2 और 3 के बीच में एक रात है, 3 और 4 के बीच में टाइम है। तो अगर मेरे पास 4-5 पेज के एग्जाम्पल्स मैंने पूरे साल बनाए हुए हैं या पिछले 3 महीने में भी बनाए हैं, तो मेरे को एग्जाम्पल्स पता है। जब मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए हैं विजन के, तो मैंने वो एग्जाम्पल्स यूज करे हैं, है ना। जब मैंने उनको रिवाइज करा तो मैंने दोबारा देखे हैं कि ये एग्जाम्पल्स है, तभी तो मैं बता रहा हूँ 5 टेस्ट का जो मेरा सोर्स है उसके अंदर मैंने एग्जाम्पल्स भी डाल दिए। अब मेरा बड़ा लिमिटेड सा सोर्स था, जो मैं एक GS और दूसरे GS के बीच में भी एक बार स्किम थ्रू कर लेता था। तो वही है, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट में एग्जाम्पल यूज करोगे ना, वो दिमाग में फीड हो ही जाते हैं, वो फिर स्पेशली याद नहीं करना पड़ता। जैसे अभी भी बड़े सारे एग्जाम्पल एथिक्स मुझे अभी भी याद है, जो मैंने यूज करे हैं या करने थे नहीं कर पाया ऐसे करके। तो जब जितना अप्लाई करोगे ना उनको, उतना ज्यादा वो याद रहेंगे। तो अभी लिस्ट बना के रख लो। कई बार जैसे मैं बता रहा हूँ ना, GS 1 का मैं खुद से घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा मॉडल आंसर, तो फिर उसके बाद उसको मैंने चेक करा ऑनलाइन आंसर से, फिर उसके बाद मैंने देखा ये थे, फिर मैंने अपनी लिस्ट भी खोल ली कि यार इसमें ये एग्जाम्पल डाल सकता हूँ, ये एग्जाम्पल डाल सकता हूँ। तो ऐसे करके वो जो फाइनल मेरी आंसर्स की मॉडल आंसर की कंपाइलेशन थी, उसमें वो मैंने वैल्यू ऐड करी हुई है साइड साइड में, कि इसमें यार ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। 10 दिन बाद मैंने दोबारा सोचा कि यार हाँ ये और बढ़िया एग्जाम्पल आ गया, तो पीछे उस क्वेश्चन में ऐड कर दिया। तो ऐसे करके सिंगल सोर्स बना लिया मैंने, जहाँ पे एग्जाम्पल भी डाल दिए थे। तो क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश ही बनाए हुए थे और मैं यूज भी कर रहा था सब्सिक्वेंट पेपरों में, तो याद रहेगा। तो ऐसे था। टेस्ट सीरीज आपने फाइनली प्री की नहीं नहीं यार, मैं बता तो रहा हूँ, इंटर्नशिप का जब मेरा आ गया था जनवरी, है ना, जो जिस जून में पेपर था, तो जैन फेब से मैंने फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू करे थे प्री के। उससे पहले मैं सेक्शनल दे रहा था। सेक्शनल भी ऐसे कि इंटर्नशिप में जब टाइम मिल गया और मेरा एक सब्जेक्ट रिवाइज हो गया, तब उसके बाद सेक्शनल दे दिया। वो भी पर नवंबर टाइप से ही शुरू करे थे मैंने। तो मैंने टोटल वही था 15 टेस्ट दिए थे, हफ्ते में एक दे दिया, और अभ्यास दिए थे तीनों विजन के। तो ये था। सेक्शन आपने ज्वाइन किया हुआ? क्या चीज? सेक्शनल तो मार्केट से यार, फुल लेंथ तो सेक्शनल भी मार्केट से, सिर्फ अभ्यास किया था मैंने। मेंस के लिए करा मैंने। मेंस के लिए विजन की टेस्ट सीरीज। और आपके नोट में क्या जाना, मतलब प्री और मेंस के वो आपने कैसे दोनों के लिए बनाए थे? यार वो तो मैंने वैसे मेजरली बता दिया, पर प्री और मेंस का ऐसे था कि यार जो जो मुझे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे ना, जैसे स्पेक्ट्रम में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स, चार्टर एक्ट्स, उनके नोट्स बना लिए। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो हम हमेशा स्किप कर देते हैं। हम स्टार्ट ही करते हैं पूरे जोश से फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, DPSP, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट वगैरह, पार्लियामेंट, उसके बाद बस हो जाती है। फिर उसके बाद हम एंड वाला पार्ट छोड़ ही देते हैं, वो छूट ही जाता है। तो फिर इसलिए मैंने ट्राई करा था कि ये हाई कोर्ट जुडिशरी वाला पार्ट, पंचायती राज वाला पार्ट, और इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, वो मैंने ज्यादा अच्छे से करे थे। ये स्टार्टिंग वाला तो याद ही रहता है, कोचिंग वाले भी वहीं तक जोर डालते हैं, एंड में खत्म सही हो जाता है। तो है ना, इसलिए एक सब्जेक्ट को देखना ये है कि एंड वाला पार्ट भी करना है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आइडेंटिफाई करा कि जो स्टार्टिंग में 1600 जब ये सारे आए थे यूरोपियन, वहां से लेके 1857 तक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है 1940 से 47 तक का। क्वेश्चन इसी में से आते हैं। वैसे भी बीच वाला जो नेशनल मूवमेंट है वो सबको ही आता है, पार्टी स्टार्टिंग वाला यूरोपियंस वाला भूल जाते हैं बार बार। तो इसलिए उस पर मैंने बहुत ज्यादा जोर दिया था। उसके कुछ कुछ चीजों के मैंने अलग से नोट्स भी बना लिए थे। मेजरली तो मैं वैसे स्पेक्ट्रम में ही मार्क करता था, और स्पेक्ट्रम मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी बुक, तो मैंने काफी बार पढ़ ली थी, तो मुझे वो पढ़ के भी बढ़िया सा ही लगता था। उसको स्टोरी बुक की तरह पढ़ते रहो यार, डेली 2-2 चैप्टर रात को टाइम निकाल के, तो बाय द टाइम वो तुम्हारा काफी टाइम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम भी काफी करोगे।
नहीं नहीं यार, प्री ओरिएंटेड ही थे, मेंस के तो नोट्स ही वो थे बस यार। 3 जीएस के पेपर विजन के, ये बाद में वीडियो भी देख लेना एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 जीएस के पेपर जो मैंने दिए थे अभ्यास में लाके, और 2 पीवाईक्यूज जो मैंने जीएस, हर एक जीएस के सॉल्व करे थे। तो हर जीएस के 5 टेस्ट थे, उनके सॉल्व आंसर्स विद जहां जहां मुझे लग रहा है वैल्यू ऐड करते हैं। तो वो मेरे नोट्स थे जीएस के, हर एक मेंस के। एथिक्स में भी यार वैसे भी ऐसे, मैं तुम्हें बताया था, जैसे बोलते हैं व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू। अब वो ना किसी को नहीं समझ आता क्या लिखना है। तो मैं स्टार्टिंग में करता था एक रैंडम सा एथिक्स और मोरालिटी का डायग्राम बना देता था साइड में कि यार जगह भर जाएगी। बट मेरे को फिर बाद में बढ़िया अप्रोच पता चली इसकी, कि सबसे पहले तो जिसका कोट है वो भी लिखते हैं। वो पहला पैराग्राफ है उस बंदे के बारे में, कि उसने ये कोट क्यों कहा होगा, उसकी 2-4 क्वालिटीज हाईलाइट कर दी ना, थोड़ा सा हो गया। सेकंड पैराग्राफ है जो तुम्हें एक्चुअली में उस कोट से 2-4 वैल्यूज तुम डिराइव कर पा रहे हो, जो तुम्हें एक्चुअली में समझ आ रहा है, जो हम पहले पूरा आंसर लिखते थे। और थर्ड पैराग्राफ तुमने हेडिंग डाल के लिखना है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, कि इस कोट का आज की डेट में क्या रेलेवेंस है। जैसे अगर कोई भी कोट है, मार्टिन ल्यूथर किंग का कुछ था, तो मैंने उसमें डाल दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर में क्यों रेलेवेंट है ना, इन्वायरमेंटल सीओपी पंचामृत में क्यों रेलेवेंट है। तो थोड़ा सा उसमें करंट अफेयर डाल दो एथिक्स उस वाले क्वेश्चन में ना। तो एक हो गया तुम्हारा बंदे के बारे में, सेकंड हो गया तुम्हारा जो कॉमन पैराग्राफ है जो तुमने उसके बारे में समझाया, जो बेसिक बेसिक क्वालिटीज एथिक्स की होती हैं, और तीसरा है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। तो कोट वाला आंसर मुझे सबसे इजी लगने लग गया, स्टार्टिंग में सबसे मुश्किल लगता था। तो इतना सा पेज है, उसमें 3 पार्ट से डिवाइड करा और लिख दिया। तो ऐसे था। तो बताओ फिर, और कोई डाउट है? वरना कोई नहीं, आईआर के लिए पीटी। मेंस के लिए यार आईआर का मैंने ऐसे था, जैसे मुझे ना टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए थे कि श्रीलंका पे क्वेश्चन आएगा, यूक्रेन पे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे मोटे मोटे कर लिए थे। तो वही आ गए, रशिया और श्रीलंका वाले तो आ ही गए। पर एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, I2U2 पेपर में वो आ गया। तो अब मैंने सोचा अब इसमें क्या करूं। अब मोटा मोटा तो आइडिया में होता ही I2U2 के बारे में कि क्या ही करता होगा, मिडिल ईस्ट और इंडिया और इन सब की है कि गेट वे टू ये वो रिसोर्सेज ये वो ये सब लिख दिए। साइड में एक वर्ल्ड का डायग्राम बना दिया, उसमें I2U2 मार्किंग दी कि ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी जाती है। एक तो है कि वर्ल्ड के मैप्स आपने बहुत ज्यादा बनाने हैं। GS1 में मेरे को लगता है मैं 3-4 वर्ल्ड के मैप्स और 4 इंडिया के मैप्स बना के आया था। GS2 में भी ये मैप बन गया है, जहाँ पे लगता है मेरी जरूरत है। जितना ज्यादा आप मैप्स और डायग्राम्स बना सकते हो ना हर जगह, वो बनाने ही है। कलर कोडेड साइक्लोन का भी मैं साइड में डायग्राम बनाया है, रेड ऑरेंज येलो, कि ठीक है उसका थोड़ा थोड़ा पॉइंटर ऐसे लिख दिया और साइड में समझा दिया। तो डायग्राम से बहुत अच्छी वैल्यू एडिशन से लगती है हमारे को, अपने आइडियाज भी प्रेजेंट हो जाते हैं, जगह भी भर जाती है, उनको भी अच्छा लगता है। तो जहां पॉसिबल हो मॉक्स में भी ट्राई करना डायग्राम्स भर भर के बनाने हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है तो मेरे रिलेवेंट डायग्राम भी बना दो, पर कोई बात नहीं, बाद तक आइडेंटिफाई हो जाएंगे कौन से बनाने हैं कौन से नहीं। और शिक्षा ना जनरली मतलब जैसे क्लास में रहते हैं तो उसके सर कहते हैं कि ये नॉट सफिशिएंट है और जाने के लिए उसकी है, तो आपको भी चाहिए होगा ये यार notes ऐसे रहते हैं। सफिशिएंट कुछ नहीं है, तुम अपने हिसाब से एनालाइज करो। तभी मैं कह रहा हूँ बेस्ट है कि अपने हिसाब से एनालाइज करो। खुद पीवाईक्यूज देखो, खुद देखो कि यार क्या इस मटेरियल में से मैंने मटेरियल पढ़ लिया, चलो तुमने क्लास वाला, पीवाईक्यूज देख लो, कोई भी क्वेश्चन बाहर से था तो सफिशिएंट नहीं है ना। मेंस के क्वेश्चन देख लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा सफिशिएंट थे कि नहीं थे। फिर उस हिसाब से तुम वो वाले जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा है वो उसमें ऐड कर लो, फिर वो नोट सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ऐसे करके है। सर मेडिकल साइंस की टेस्ट सीरीज आपने यार मैंने नहीं दी थी पीवाई पीवाईक्यूज और सिलेबस, तभी थोड़े नंबर भी कम रह गए होंगे। बट ठीक है, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उससे ना एक फायदा ये हो जाता है कि पता चल जाता है जैसे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। 8 में से 5 करने हैं ना, तो वहाँ पे पहली बार जाके आप बैठो और देखो कि हाँ यार ये वाला कर लेता, ये वाला नहीं कर लेता, तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। और एक चीज हाँ, ये पक्का एक बार देख लेना यार कि पहले 5-6 मिनट वेस्ट हो जाए, पर देख लेना मैंने कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। एक चीज बड़ा डाउट आता है यार कि ये 2 क्वेश्चन तो पक्के ही आते थे इस 5th क्वेश्चन के जैसे, और ये 2 शायद बिल्कुल ही नहीं आते। और दूसरा है कि हाँ ये 3 ओके ओके आते हैं, चौथा है कि हाँ ये भी शायद ही आता है। तो उनमें से कौन सा करना चाहिए? मैं कहूँगा दूसरे वाला कर लो, कि पक्के वाले तो कोई बात नहीं, पर जिसमें आप थोड़ा सा भी लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन इस बार आ गया हाइड्रोइड बोन पे, अब वो तो हमने नहीं पढ़ा होता कभी भी हाइड्रोइड बोन, तो मैंने कहा ये वाला करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे एस्परजिलोसिस और ये वाला पक्का ही आता था अच्छे से। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये फिर भी नहीं करूंगा, दूसरा चाहे कम भी आता है वो कर लूंगा, कि एटलीस्ट सब में मुझे 5-5 नंबर तो मिल जाए। एक में 7 लेके और एक में 0 लेके तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे आप खुद टाइट्रेट करोगे ऑन द स्पॉट, तो इसलिए स्टार्टिंग के 6-7 मिनट पेपर में लगा लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना, और क्वेश्चन पेपर में टिक मार लेना कि ये क्वेश्चन ही करना। कई बार ऐसे भी हो जाता है एंड में कि यार एक क्वेश्चन कम कर दिया, एक क्वेश्चन ज्यादा कर दिया एक सेक्शन का, तो वो पहले ही अच्छे से डिसाइड करके कर, वहां पे ब्लंडर नहीं कर सकते। तो ठीक है फिर। बता सकता मतलब प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिला था
उसको आपने ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज किया, मतलब क्या क्या किया आपने नई नई चीजें? यार उसमें वही ना, जैसे मैंने पहले 1.5 महीना मेडिकल साइंस करा, उसके नोट्स कंपाइल कर लिए, ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। अगले 1.5 महीने मैंने हर एक 1.5 हफ्ते में एक जीएस करा। उसमें जैसे मैंने बताया कि 2 पीवाईक्यूज, एक वीकेंड पे 2 जीएस के टेस्ट विजन के, 4 चीज़ें हो गई मेरी 1.5 हफ्ते में। बस फिर डेढ़ करके मेरे हो गए 4 हफ्ते, चारों जीएस का हो गया था। तो जो स्टार्टिंग का 1.5 मंथ जो मेडिकल साइंस वाला कह रहा हूँ, उसके अंदर मैंने एथिक्स भी पढ़ा था, क्योंकि एथिक्स मैंने पढ़ा नहीं हुआ था। तो वो 1.5 हफ्ते में एथिक्स अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए एथिक्स मैंने पढ़ लिया था उस 1.5 महीने में ही, कि मेडिकल साइंस दिन में कर लिया, जब बोर हो गया तो एथिक्स कर लिया आधा दिन। तो वो था। एसए के लिए मैंने 1 हफ्ता ही दिया था, 4 दिन टू बी प्रिसाइज, कि अनुदीप त्रिशेट्टी सर का ब्लॉग पढ़ा, फिर 2-3 मैंने मॉक एसेज लिखे, और फिर मैंने उसको मतलब टॉपर्स के एसेज भी पढ़े, मैंने कैसे लिख रहे थे, कुछ मुझे अच्छे लगे कुछ अच्छे नहीं लगे। तो ये मोस्टली फिलोसफिकल एसे भी था, और ऑप्शन मिले ना टेक्निकल फिलोसफिकल में, ऑलवेज प्रेफर फिलोसफिकल। उसके अंदर आप अपना क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और क्लियरली आप अपना अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके लिखी जा सकते हो। टेक्निकल में एक तो दूसरों को नॉलेज हमसे ज्यादा होगी जिनको आता है, और दूसरा है कि वो मोनोटोनस टेस्ट हो जाएगा, एग्जामिनर को भी पढ़ के मजा नहीं आएगा, और एग्जामिनर को 4 बातें हमेशा ज्यादा ही आती होंगी टेक्निकल एसे की। तो इसलिए फिलोसफिकल एसे प्रेफर करो, उनको कई चीजें अच्छी, बहुत ही एक्सट्रीमली अच्छी भी लग सकती है, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं उसमें। कैसे क्या क्वालिटी थी फर्स्ट के बारे में कर रहे हो, कौन सा होगा 6 साल वाली? यार ऐसे क्वालिटी की बात नहीं है, एक तो ये बात थी कि मेरे को फोकस था, क्लियर था कि यार करना ही है। अगर दोस्त घूमने जा रहे हैं तो जाते रहे, मुझे नहीं फर्क पड़ता था, है ना। अपना घूमने भी चले जाता था, ऐसी बात नहीं है, पर कोई जा रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगता था। दूसरा ये था कि मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी सी पेशेंस पहले नहीं थी मेरे में, पर एंड तक पेशेंस डेवलप हो गई थी, कि कोई बात नहीं। और एक था कि यार लगातार मैं डेली अपने कुछ ना कुछ आवर्स, जैसे प्री और मेंस के बीच में डेली 10 घंटे लगाए थे, पर प्रॉफ के टाइम में कभी 3 भी लग गए, कभी नहीं भी लगे। तो ये था, तो जब मेरे को टाइम था कि यार अब पढ़ना ही है, प्री से पहले 1 महीने मैंने छुट्टी ले ली थी, डेली 12 घंटे में पढ़ रहा था प्री से पहले। पहले अभ्यास में मेरे 50 नंबर थे, जो विजन का दिया था, दूसरे अभ्यास में 100 थे। तो 2 हफ्ते में मैंने बैठ के लगातार डेली 10-12 घंटे पढ़ के मैंने रिवीजन करी पूरी, कि अगले अभ्यास तक ठीक करना है। और पहले अभ्यास में नंबर कम भी इसलिए थे कि मैं बिना सोए गया था, तो सो के भी जाना है प्री से पहले थोड़ा सा ना, 6-7 घंटे। और एक बात और याद रखना, क्वेश्चन प्री में मुश्किल जो आएगा वो सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए है ना, सिर्फ हमारे लिए मुश्किल नहीं है, तो डरना नहीं है। काफी क्वेश्चन है, उनको आप देखो, एनालाइज करो, ऑप्शंस देखो, आंसर मिल जाता है। तो ये खुला माइंड रखना प्री में बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जैसे हम देख रहे हैं ट्रेंड बड़ा रैंडम सा हो रहा है प्री का, तो इसलिए आपको फिर भी एनालाइज करना है, लगे रहना है उस क्वेश्चन पे जब तक हो नहीं रहा। तो ऐसे, चलो फिर ठीक है गाइस, है ना, कुछ और होगा तो दोबारा आ जाऊंगा, कोई नहीं। ओके यार।